So we were doing the points of differences between the fertilizers and the manures. Okay. So last 2 points of differences were left. So let's do that firstly. So here I'm writing fertilizers and on this side I'm writing manures. Okay. So for the fertilizers, they ensure proper and healthy growth of plants okay, by providing them the nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium. Okay, so fertilizers they ensure proper growth and development, healthy growth of plants by providing nitrogen, phosphorus, and potassium. Okay, and on the manure side, manures they help in enriching the soil. ओके जो मैन्योर्स हैं वो सॉइल को एनरिच करने में हेल्प करते हैं बट जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करने में हेल्प करते हैं ओके डिफरेंस क्लियर है दोनों में जो फर्टिलाइजर्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं बट जो मैन्योर्स हम डालते हैं दे हेल्प इन एनरिचिंग द सॉइल ओनली so they help in enriching the soil with organic matter okay and coming to the last point whenever we have to use fertilizers they need some special guidelines okay so fertilizers they always use special guidelines okay so how we have to use them what is the time of their addition right so these all factors they will be contributing for the fertilizer they need some special guidelines and precautions but this is not the case in manures ठीक है मैन्योर्स क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोस्ट है तो आप कभी भी डाल सकते हो दे डोंट नीड एनी स्पेशल गाइडेंस so they don't need any special guidelines okay so with this we have done the difference between the fertilizers and the manures so 7 points हमने differences के कर लिए हैं okay हाँ जी डन बेटा डन Anjani on the lower part I have written they use special guidelines and precautions they use special guidelines and precautions ठीक है so moving further we have to do the disadvantages of fertilizers and advantages
ऑफ यूजिंग मैन्योर्स, राइट। तो क्यों जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हार्मफुल हैं, राइट, एंड व्हाई द मैन्योर्स दे आर यूजफुल टू अस. So the very first point of differences is that the excessive use of fertilizers, they can make the soil fertile. Okay. So disadvantages of fertilizers. So their excessive use, it makes the soil fertile, less fertile. तो अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो एट द एंड सॉइल विल लूज इट्स फर्टिलिटी, राइट. हाँ जी, व्हाट कैन बी द सेकंड पॉइंट, ये हमने डिफरेंसेस में भी किया है. यस, इट भी वेरी गुड तरन्या. इट कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन. क्योंकि जिस सॉइल में आपने फर्टिलाइजर्स डाले हुए हैं, राइट, इट कैन वॉश आउट विद द इरिगेशन प्रैक्टिसेस और विद द रेनफॉल. ठीक है, तो ये सॉइल जिसमें आपने फर्टिलाइजर्स ऐड किए हुए हैं, ये कुछ इरिगेशन के कारण या रेन के कारण, ओके, दैट कैन मूव इनटू द वाटर बॉडी, so thus causing the water pollution also. हाँ जी, what else? It causes soil pollution also. Soil को भी pollute करती है. Okay, and this is, they are not actually environmental friendly because they are non-biodegradable. Okay, they are non-biodegradable, so they are not environmental friendly. So that's why we should limit the use of fertilizer. Okay. Jayapul, that don't provide humus to the soil. This is also important point. Okay. Yes, Ishan, it can kill the useful microorganisms in the soil. This is also the point you can write. ठीक है, क्योंकि ह्यूमस वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी डिफरेंस में भी लिखा हुआ है, तो आप वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, दैट दे डोंट प्रोवाइड ह्यूमस. And along with that, they can also kill the useful microorganisms. Okay. So they can kill useful microbes, right? So these are the points of differences, or sorry, these are the disadvantages of fertilizers. Now coming to the advantages of manures. कि क्यों manures जो हैं वो अच्छे होते हैं, they are environmental friendly, right? So why we should use manures in excess rather than fertilizers? So firstly, as you are saying that in the exchange of gases, okay, so exchange of gases they make easy, water holding capacity ज़्यादा कर देते हैं, okay. Exchange of gases is easy with the manures, water holding capacity is more with the manures. Okay, तो पानी जो है वो ज़्यादा देर तक सॉइल जो है वो रिटेन कर सकती है. They add humus to the soil. Okay. They are environmental friendly. They add humus. They are environmental friendly. They add humus. They don't cause any water pollution. Okay. They increases the friendly microbes. So all these points you can add क्योंकि हमने already discuss कर लिए हुए हैं. ठीक है, तो अगर वो फ्रेंडली माइक्रोब्स नहीं इंक्रीज करते हैं तो ये ज्यादा इंक्रीज करते हैं.
Yes, it improves the texture of the soil. So all these points you can add in the differences also. ठीक है, वाटर या सॉइल पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं, आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो. ओके, दे डोंट कॉज एनी वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन. एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो दे आर लिटिल बिट कॉस्टली. ओके, एक्सपेंसिव होते हैं फर्टिलाइजर्स, बट द मैन्योर्स दे आर नॉट एक्सपेंसिव, दे आर नॉट कॉस्टली and can be prepared in fields. Okay, so enough points for the disadvantages and advantages and enough points for the differences. Okay, तो आप ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो बेटा. So yes, they also reduce soil pollution. They can be prepared easily. They are having more nutrients or they are nutrient rich. Okay. Right. So these points you can add for the differences also, and you can add for the advantages and disadvantages also. Now coming to the next part. Now this agriculture practice has finished, right? We have added manures and fertilizers to our crops now. Okay. So हमने sow करने के बाद अब उनमें manures and fertilizers add कर दिए हुए हैं. Now what is the next agriculture practice that our crop it needs irrigation now. Okay, your field it needs to be irrigated now. तो irrigation practices करनी है अब हमने. irrigation का मतलब अगर हम रफली बात करें तो हमने अपने फील्ड को पानी देना, राइट, अपने क्रॉप्स को पानी देना. ओके, so that is called irrigation, right? So providing the proper and adequate supply of water to the crops time to time, so that we called as irrigation. Okay, so supply of water to the crops at regular intervals. So that is known as irrigation. Okay, तो irrigation practices करते हैं. अब अगर मैं बात करूं नेचुरल इरिगेटिंग मेथड की, ठीक है, तो पानी नेचुरली कहाँ से उनको मिल जाता है. फर्स्ट इज द सोर्स रेन. ठीक है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सोर्स by which all the crop plants they get irrigated naturally, that is the rain. ठीक है, तो रेन जो है वो अपने आप ही उनको क्या कर देती है, इरिगेट कर देती है, पानी की जो सप्लाई है वो दे देती है, राइट. बट वी विल बी स्टडिंग अबाउट अदर मेथड्स, ठीक है, जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं. So it is a supply of water to the crops at regular interval through the rain also and through the other sources also. Okay, अगर rain नहीं आ रही है, okay, if there is scanty of rainfall or at that time when you want your field to be irrigated, at that time when rain is not available, तो उस point पे हम other sources employ करते हैं. Other sources हम कौन कौन से ले सकते हैं, तो हम water जो है वो lakes, wells, ponds, राइट, तो इनमें से जो पानी है वी विल प्रेफर एंड वी विल irrigate our field, right? So taking water from the ponds, lakes, wells, canals, river, dams. Okay, these are the other sources that will provide us water and through which, yes, tube wells also. Okay, wells हो गए, tube wells हो गए, so by which we will be irrigating our land. Okay, now the next question is कि क्या आपके क्रॉप को रोज रोज पानी चाहिए.
यस, क्या आपकी क्रॉप को रोज रोज पानी चाहिए, हर सीजन में पानी चाहिए, राइट? तो द टेम्परेचर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन इट वेरीज फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप, राइट? कि हमने कब और कैसे उसको पानी देना है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, कि किस टाइम पे पानी देना है और कितना पानी देना है, ओके? किस टाइम पे उसको पानी देना है और कितना पानी देना है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर, ये किस पे डिपेंड करती है कि आपके क्रॉप्स कैसे हैं। कुछ क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है, ओके? so that will depend from crop to crop, from season to season। जैसे हमने पढ़ा है कि समर सीजन वाले जो क्रॉप होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा पानी चाहिए, that's why they are grown in the summer or rainy season। खरीफ क्रॉप्स, जो रैबी क्रॉप्स हैं, हम उनको विंटर में ग्रो करते हैं क्योंकि उनको कम पानी चाहिए होता है, ओके? so that also depends on the season, right? and the third thing is on the soil, कि आपने सॉइल कैसे यूज की है, कि वो सॉइल जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, ओके? सम सॉइल दे आर हैविंग मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे क्लेई सॉइल हो जाती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। सैंडी सॉइल है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, वो जल्दी पानी लूज कर देती है, ओके? तो दैट यू विल सी अबाउट योर क्रॉप, द सीजन एंड द सॉइल, कि मैंने उसको कितना पानी देना है, ओके? और किस टाइम पे पानी देना है। जनरली द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिविंग वाटर इज मोर इन द समर सीजन, हम समर सीजन में पानी ज्यादा देते हैं क्रॉप्स को ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, ओके? समर सीजन में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होने के कारण जो क्रॉप्स हैं दे डिमांड मोर वाटर, ओके? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई प्लांट्स दे नीड वाटर, क्यों पानी चाहिए उनको, तो पानी के बिना क्या ग्रो नहीं कर सकते, राइट? so now let's discuss the various uses of water for the crops। so yes, you can give side by side also in the chat box। Plants they consist 90% of water, right? उनकी बॉडी में 90% ऑफ वाटर होता है ऑलरेडी, बट स्टिल दे नीड वाटर फ्रॉम आउटसाइड, व्हाई? बट बाहर से उनको फिर पानी की जरूरत होती है, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट? okay, the first I can see is photosynthesis, right? They have to prepare their food for which they need water, okay? Photosynthesis process, what about the second? To get nutrients from the soil, तो जो सॉइल है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स्ड होते हैं, तो क्रॉप्स को वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सो द वाटर when it moves upward, okay, it carries along with it all the nutrients, okay? so in this way the plants they get the desired nutrients that they want। Hanji, what other thing for the better growth of plant? Very good। for doing the transpiration process to keep themselves cool, ठीक है, अपने आप को कूल करने के लिए वो क्या करते हैं, पानी को इवेपोरेट करते हैं, ओके? फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। हाँ जी, नेक्स्ट और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं बेटा? Okay, so the water it also protects them from the hot and the cold climatic conditions, okay? So it protects them from hot air currents and frost,
फ्रॉस्ट मीन्स ठंडी से, तो उनको गर्मी से भी और ठंडी से भी उसको बचाता है। ओके, सो नॉर्मली वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट, उसकी फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स सारे जो हैं वो ग्रोथ पे डिपेंड करेंगे कि कैसी प्लांट की ग्रोथ होगी, फिर फर्दर उसकी ग्रोथ जो है सीड्स की, फ्रूट्स की या फ्लावर्स की, वो उस पर डिपेंड करेगी। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में आप मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स भी कह सकते हो डैट whatever the manures and fertilizers you have added to the soil, they get also transported along with the water. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है, अपने आप को कूल करने के लिए जो प्लांट्स है वो ट्रांसपिरेट करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं या इवेपोरेट करते हैं वाटर को। सीड्स की जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, राइट। नाउ नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द सोर्सेज और द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन करते हैं, अब हम कौन कौन से मेथड एम्प्लॉय कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। ओके, तो इरिगेशन के लिए हम दो तरह से मेथड्स जो है वो एम्प्लॉय कर सकते हैं। वी आर हैविंग ट्रेडिशनल मेथड्स, okay, and the second one is the modern method. तो जैसे आप हर एक प्रैक्टिस के लिए पढ़ते आए हो अभी तक, ओके, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, राइट। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोड, दैट इज द पुली सिस्टम, okay. The second one is the chain pump, Dhekli and Rahat. So they are some of the traditional methods which we can employ. Okay. For the modern method, we are having sprinkler system, and the second one we use is the drip irrigation. Okay. तो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर दे आर आइदर यूजिंग द पुली सिस्टम, पुली सिस्टम जैसे आप देखते हो वेल्स में से पानी निकालते हैं ना वो यूजिंग द पुली, फिर उसको जो है वो मैन्युअली डिस्पर्स कर रहे हैं, जो आपके क्रॉप्स हैं उनको इरिगेट कर रहे हैं, ठीक है, पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड हो सकते हैं, जैसे मोट है, राइट, फ्रॉम द वेल्स यूजिंग द पुली सिस्टम दे आर ड्राइविंग द वाटर। चेन पंप हो गए, ओके। चेन पंप भी जो है दिस इज आल्सो अ मॉडर्न, इट इज आल्सो अ ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो उन्होंने एक जो है वो साइड बाय साइड वेल्स के साथ ही, राइट, एक यू कैन से एक स्पेस कंस्ट्रक्ट की होती है जहां पर वो पानी डालते हैं और वो पानी सीधा जो है वो फील्ड्स में जाता है। ओके, देख ली अगेन, इट इज आल्सो ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। इसमें वो रोप के साथ जो है आपकी बकेट को कनेक्ट कर देते हैं, और अब यहाँ पर वो खुद नहीं कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल रहे हैं, बट यूजिंग सम मोटर और यूजिंग सम पुली सिस्टम, ठीक है। तो वो ऐसे उसको यूज कर रहे हैं, और यू कैन से दे कैन यूज पंप्स फॉर इट। राहत लीवर सिस्टम, आपने देखा होगा कि मॉडर्न टाइम में वेल्स के आसपास जो ऑक्स हैं वो घूमते होते हैं। हैव यू सीन दिस थिंग कि वेल्स के पास जो ऑक्स हैं वो घूमते हैं, और उससे जो पानी है वेल्स में वो जो है वो साइड बाय साइड पंप होता है, ठीक है। तो दैट इज द राहत सिस्टम, राहत और लीवर सिस्टम, ओके। तो ये चार ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिसमें नॉर्मली क्या किया जाता है, वेल से पानी या तो हाथ से लिया जाता है या यूजिंग सम पंप्स, ठीक है। हम पंप्स यूज कर सकते हैं, या जैसे लास्ट वाला मेथड है जिसमें हम एनिमल्स को यूज कर रहे हैं वेल्स में से पानी निकालने के लिए, तो दैट कैन बी यूज, ओके।
सो ट्रेडिशनल मेथड ये हो गए हैं आपके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम. ओके. So beta, you can see here are the 4 methods that we have discussed so far now. Just a minute. हाँ जी, can you see the first one is moat or pulley system. ठीक है. The second is the chain pump. ये रहा आपका बेटा moat and pulley system. ओके तो पानी निकाला है एंड उसको वहीं पे वो क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं टुवर्ड्स द लैंड. ओके या ऐसे भी आप देख सकते हो मोट एंड पुली सिस्टम. तो एक स्पेसिफिक एरिया बनाया हुआ है जिसमें वो पानी डाल रहे हैं और वो पानी सीधा जो है वो फील्ड की तरफ जा रहा है. ओके हाँ जी क्लियर. इसकी लास्ट फोटो देखो बेटा, द राहत सिस्टम. राहत सिस्टम में क्या हो रहा है कि एनिमल्स जो हैं, दे आर यूजिंग द एनिमल्स. वो एनिमल्स गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ लीवर. ओके एक लीवर सिस्टम बनाते हैं. लीवर जो है एक या दो एनिमल्स हैं, आगे पीछे ऐसे दे आर रोटेटिंग एंड ड्यू टू दिस ओके द वाटर इज बीइंग पुल्ड फ्रॉम द वेल्स. तो वाटर जो है वो वेल्स में से आप निकाल सकते हो. देखली इज ऑल्सो द सेम सिस्टम जहाँ पर आप पुलिस को यूज करके या रोप को यूज करके जो बकेट है उसको बाहर निकालते हो. ओके चेन सिस्टम भी जो है इट इज ऑल्सो द सेम वन. चेन सिस्टम में जैसे हमने पहले मोड सिस्टम पढ़ा है कि एक स्पेसिफिक एरिया बनाया हुआ है हमने, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चेन बना देते हैं. चेन पंप्स होते हैं हमारे, ठीक है. अब उन चेन पंप्स में पानी डालते जाएंगे एंड द वाटर इट विल बी स्टार्टेड टू द फील्ड. ओके so this is how these are the 4 traditional methods. Now coming to the next is modern methods and that are very important. ठीक है modern methods हमने पढ़ने हैं. तो मॉडर्न मेथड में सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम. द फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम. पानी स्प्रिंकल करना है. आपने ये देखा भी होगा नॉर्मली गार्डन्स में, जहां पर हम क्या करते हैं, वी अटैच अ नंबर ऑफ नोजल्स और नंबर ऑफ पाइप्स टू अ मेन पाइप. ऐसे एक मेन पाइप होती है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक नोजल जो है वो कनेक्ट कर देते हैं जॉइनिंग द डिफरेंट पाइप. ये वाली पाइप जो होती है दैट इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई जहां से पानी आता है. तो यहाँ से जब पानी आएगा इट विल बी रोटेटिंग. ये नोजल जो है वो रोटेट करती जाएगी और इसमें से जो पानी है वो हर जगह स्प्रिंकल होगा. आपने देखा है ये, हैव यू एवर सीन इन द गार्डन. ठीक है तो एक नोजल होता है, एक मेन पाइप से ये जो नोजल है आपने कनेक्ट करनी है. दैट नोजल इज हैविंग अ नंबर ऑफ पाइप. तो जैसे जैसे वो नोजल घूमती है वैसे वैसे जो पानी है वो सारे गार्डन में या सारे एरिया में क्या हो जाता है, स्प्रिंकल हो जाता है. स्प्रिंकल मीन्स स्प्रिंकल करना, फेंकना. ठीक है तो दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम. ओके द सेकेंड वन दैट इज द ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप का मतलब होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप. ड्रिप का क्या मतलब होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप. यानी कि मैंने पानी देना है, आई हैव टू वाटर द फील्ड्स और द क्रॉप्स बाय गिविंग देम वाटर एज ड्रॉप वाइज. ठीक है ड्रॉप वाइज उनको डायरेक्टली जो ड्रॉप्स हैं वो रूट्स तक जाएंगी. ओके एंड आई विल बी गिविंग द वाटर टू देम ड्रॉप बाय ड्रॉप सो दैट द वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. ठीक है तो ये जो मेथड है ये डायरेक्टली आपके रूट्स को वाटर देगा. ठीक है ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड में तो योर रूट्स दे विल बी डायरेक्टली गेट वाटर विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज. ठीक है तो इसमें यू कैन से स्प्रिंकलर सिस्टम में वेस्टेज हो सकती है पानी की. ओके बिकॉज हम यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर एज अ स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है जहाँ पर हम जो अपना पानी है वो स्प्रिंकल कर रहे हैं हर जगह. ओके माइट दैट हैपन कि एक जगह जो ज्यादा मिल रहा है पानी, एक जगह वो कम मिल रहा है. ठीक है तो एक्यूरेसी नहीं आती है. बट इन द ड्रिप इरिगेशन मेथड सिंस
you are providing the roots drip by drip, drop by drop to the roots. Okay, so it ensures the giving of the proper amount of the water to the roots, and further your crops they will get the adequate amount of water. Okay, तो वेस्टेज कम हो जाती है इस केस में पानी. हाँ जी, these are clear to you or not बेटा? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं ये दोनों मेथड? ओके, तो स्प्रिंकलर सिस्टम हम वहां पर यूज करते हैं वेयर द लैंड इज अनइवन. It is used in those areas where land is uneven or if you are having the sandy soil. ठीक है, या आपकी सॉइल जो है वो सैंडी नेचर की है. ओके, रेस्ट वी विल बी डूइंग टुमारो.